Good day, students. Today we are going to start with lecture number 4 of our subject, Total Quality Management. Now, the first thing that we're going to be studying, in the last lecture we were studying about the tools used in TQM, and we spoke about the flow charts and the diagrams and the fishbone diagrams and histograms also. Today we're going to move on to product design, and we're going to be discussing product design today. Now, the first part in product design is the quality function deployment. When we talk about quality function deployment, then a critical aspect of building quality into a product is to ensure that the product design meets customer expectations. So, मेजर चीज़ जब हम एक क्रिटिकल चीज़ हम जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है व्हेन वी आर लुकिंग एट बिल्डिंग क्वालिटी, जब हम क्वालिटी किसी प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन करना चाह रहे हैं, क्वालिटी लाना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट में, सो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोडक्ट डिज़ाइन है, और वो प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से मैच करनी चाहिए. It should meet the customer's expectations in the way whatever the demand of the customer, according to that, the product should be designed. Now, this typically is not as easy as it seems. So, customers often speak in everyday language. हमेशा इतना आसान नहीं होता है, हर कस्टमर का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट से वो आके जो है उनकी डिमांड होगी, उनकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट होंगी किसी प्रोडक्ट से. So customers often would speak in everyday language, which is difficult to then exactly pinpoint and say that yes, these are the expectations and the product design should be according to that. Now, for example, a product can be described as attractive, strong or safe. Product को हम कैसे describe कर सकते हैं? Attractive, an attractive product, a strong product or a safe product. Now, however, these terms can have very different meanings to different customers. So, in terms का हर customer के लिए different एक concept है, different idea से कोई किसी का concept जो है attractiveness का किसी product का वो different होगा, या वो उस product से attract होने का उसका concept different होगा. Safety point of view से their concept would be different. Strong being like, is it really strong? So, what one person considers to be strong, another may not. एक समझ रहा है कि it's very attractive or it's a strong product, but another might think that it's not. So उनकी expectations आप match नहीं कर सकते कि exactly 100% हर customer का demand या expectations same होंगी. Now, to produce a product that customers want, we need to translate customers' everyday language into specific technical requirements. So, अब एक प्रोड्यूस है, ठीक है, हमने कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, सो वी वांट टू नो दैट द कस्टमर्स उनकी नीड क्या है, व्हाट डू दे वांट, वो चाहते क्या है, एंड देन ट्रांसलेट दैट customers' everyday language into a specific technical requirement, meaning that for the manufacturers to understand. Now, however, this often can often be difficult. A useful tool for translating the voice of the customer into specific technical requirements is quality function deployment. So, कोई ऐसी चीज़ जो एक टूल आप कह लो जो ट्रांसलेट करता है कस्टमर का एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे स्पेसिफिक जो उनकी डिमांड है, उनकी एक्सपेक्टेशंस है, बट वो तो कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसको स्पेशल टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में लाने के लिए उस टूल को, उस ट्रांसलेटिंग टूल को हम क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट कहेंगे, QFD. नाउ, क्वालिटी फंक्शन क्या है? Quality function deployment is also useful in enhancing communication between different functions, such as marketing, operations and engineering. So quality function deployment जो है वो कहाँ पे useful होता है? Communication enhance करने के लिए between the different functions. अब किन different functions की बात हो रही है? Marketing की बात हो रही है, operations within an organization उसकी बात हो रही है, and engineering a product.
Quality function deployment. Now, when we speak about quality function deployment, it enables us to view the relationships among the variables involved in the design of a product, such as technical versus customer requirements. So, quality function deployment हमें क्या कर रहा है? वो हमें enable कर रहा है, हमें वो view करने के लिए relationship जो एक जो वेरिएबल्स है उस रिलेशनशिप के इन्वॉल्व इन द डिज़ाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की डिज़ाइन में जो इन्वॉल्व हो, लाइक सच एज कि हम टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं वर्सेस कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. नाउ दिस कैन हेल्प अस एनालाइज द बिग पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल, by running tests to see how changes in certain technical requirements of the product affect customer requirements. So सबसे मेन चीज़ हमने क्या देखनी है कि हमने ये चीज़ एनालाइज करना है बिग पिक्चर में कि फॉर एग्जांपल हम कोई वी आर रनिंग सम टेस्ट एंड वी वांट टू सी हाउ द चेंजेस इन सर्टेन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स जो हैं ऑफ द प्रोडक्ट अफेक्ट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. उनकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स कहाँ पे अफेक्ट होती हैं अगर हम कोई टेक्निकली उसमें चेंजेस लेके आते हैं. Like in manufacturing, technically changes आप manufacturing के दौरान लेके आता है, like technical changes would be in the product design maybe. Now an example is an automobile manufacturer evaluating how changes in materials affect customer safety requirements. So सबसे बड़ा example हमारे पास automobiles की है, ठीक है, और automobile manufacturers. सो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जो है वो एवेल्युएट करते हैं कि कैसे चेंजिंग जो है मटेरियल्स में, अगर वो मटेरियल्स में चेंज लेके आएंगे तो वो कस्टमर की सेफ्टी रिक्वायरमेंट को कैसे चेंज करेगा या उसको कैसे अफेक्ट करेगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल, if they don't have proper in a car, in let's say in the European countries, they usually have airbags in the car, in the steering wheel. Now that is in case if a person driving a car would have a head-on collision, यानी उसका हेड स्टार्टिंग से स्टार्ट का कार के जो है ना एक्सीडेंट अगर होता है तो देन वो एयर बैग बाहर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि सेफ्टी की कस्टमर की जो है सेफ्टी या ड्राइवर की सेफ्टी जो है ताकि उसका व्हील पे या विंडो पे उसका सन ना लगे. Then the other, let's say another example of that would be the seat belts. If the seat belts are made of quality and अगर हम उसका लो क्वालिटी कर दें, let's say, and from the force of the pressure of an accident, अगर वो सीट बेल्ट ब्रेक हो जाती है, then the customer would be flying out of the window or the windshield. Now that they have to consider those. So ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को क्या किस तरीके से वो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट देखते हैं कि उन्होंने ये चीज़ देखनी है कि उनके अगर वो मटेरियल चेंज करेंगे तो वो कस्टमर सेफ्टी कैसे जो है मेंटेन करेंगे या उसकी रिक्वायरमेंट्स पे कैसे पूरी उतरेंगे. So they have to maintain quality in their product and in their materials so that they can maintain the safety of a customer. Now this is just one example. Now this type of analysis can be very beneficial in developing a product design that meets customer needs. So इस टाइप का एनालिसिस किस चीज़ में जो है ज़्यादा इफेक्टिव है कि बेनिफिशियल कहाँ होगा जब आप डेवलप कर रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन जो कस्टमर नीड्स को मीट करता है. Now yet does not create unnecessary technical requirements for production. So सबसे ज़्यादा ये type of analysis कहाँ हमें help करेगा where it can be beneficial in developing a product design. एक product design बनाने में, develop करने में वो बड़ा efficient होगा, but और customer needs को भी meet करेगा, लेकिन वो it shouldn't create unnecessary technical requirements for production और कोई unnecessary ऐसी technical requirement ना हो जो production में उसके यानी hinder करे. Now, quality function deployment begins by identifying important customer requirements. So, सबसे main चीज़ ये क्या चीज़ पे function कर रही है कि customer की जो important requirements हैं उसको identify करना. Which typically come from the marketing department. अब ये कहाँ से आप ये चीज़ गेन करते हैं? आप marketing department से ये, क्योंकि जो market कर रहा होगा ना product, उसको customer feedback मिल रही होगी और उस customer feedback की base के ऊपर ये पता होगा कि customer की requirement क्या है. Now these requirements are numerically scored based on their importance and scores are translated into specific product characteristics.
सो इन रिक्वायरमेंट्स को हम कहेंगे कि न्यूमेरिकली स्कोर्ड, दे आर न्यूमेरिकली स्कोर्ड, और वो किस बात पे, उनकी इंपॉर्टेंस की बेस पे। एंड स्कोर्स आर ट्रांसलेटेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन स्कोर्स को हम ट्रांसलेट कर देते हैं डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्ट के उसमें। Now, evaluations are then made of how the product compares with its main competitors relative to the identified characteristics. तो evaluations कहाँ पे हम करते हैं? evaluations हम करेंगे that वो प्रोडक्ट को हम जब कंपेयर करना शुरू करेंगे उसके मेन कॉम्पिटिटर्स के साथ, और ये देखेंगे रिलेटिव टू द आइडेंटिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर रखते हुए हम जब उनको उस प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे कि उसके कंपटीशन में क्या मार्केट में प्रोडक्ट आया हुआ है, एंड देन वी कैन evaluate the characteristics at that point. So finally, specific goals are set to address the identified problems. So, स्पेसिफिक गोल्स सेट कर दिए गए हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए या उनको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। नाउ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स लुक्स लाइक अ पिक्चर ऑफ अ हाउस एंड इज ऑफन कॉल्ड द हाउस ऑफ क्वालिटी। सो जो मैट्रिक्स तैयार होता है वो पिक्चर का, वो उसका रिजेंबल करता है वो एक घर की तरह, लाइक अ हाउस, इसीलिए उसको नाम उन्होंने दिया है द हाउस ऑफ क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट वी विल कंसिडर द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो ये तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के बारे में बात हुई। अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में, तो अब बैकअप टू शो हाउ वी वुड यूज QFT। सो वो एक बैकपैक है कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग में क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को कैसे यूज करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद अ रिलेशनशिप मैट्रिक्स दैट टाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट्स टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो अगर हम देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक रिलेशनशिप देखते हैं मैट्रिक्स का, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को टाई कर रहा है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कस्टमर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। Now, customer requirements, remember that our goal is to make a product that the customer wants. So, सबसे major goal हमारा क्या है कि हमने उस तरह का product launch करना है या उस तरह का product provide करना है customer को जो उसकी requirement के मुताबिक हो। Now, therefore, the first thing we need to do is survey our customers to find out specifically what they would be looking for in a product. So, once again I'll explain it. Therefore, the first thing we need, हमें पहली चीज क्या चाहिए, हमने सर्वे करना है कस्टमर्स की ये मालूम करने के लिए कि उनको स्पेसिफिकली उनकी नीड्स क्या हैं और वो एक प्रोडक्ट में क्या चीज ढूंढ रहे हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या हैं। Now, in this case, a paper bag for students. So, हम बैकपैक देखते हैं या वो नोट करते हैं कि अगर हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल हम एक मिसाल लेते हैं कि हमने बैकपैक बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, या पेपर बैग बुक बनानी है, ठीक है, that the students are going to be using. Now, let's say a handbook, a paper bag handbook, how useful and the students are going to be using it and how we can maintain the quality of it. Now, to check if it's durable, because when you're using a handbook, then a student would be using it frequently. Now, a backpack, once again, a student will be using frequently. Backpack, almost daily basis पे student use करेगा. So, to find out precisely what features students would like in a backpack. तो हम फीडबैक जाकर लेंगे, हमने अब स्टूडेंट्स का बैकपैक अगर डिज़ाइन करना है या उनके लिए पेपर बैग बुक डिज़ाइन करना है तो हम स्टूडेंट्स से जाके फीडबैक लेंगे. द स्टूडेंट्स वुड बी आवर कस्टमर्स. अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट माइट सेंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू टॉक टू स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, conduct telephone interviews and maybe conduct focus groups. So marketing department की ड्यूटी यहाँ पे आ जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि वो जब प्रोडक्शन हो कर रही है मैन्युफैक्चरिंग में कि वो जाएं और कैंपसेस में स्टूडेंट्स से यानी बात करें. They can have also interview telephone interviews, टेलीफोन करके उनके इंटरव्यूज लिए जा सकते हैं या फिर एक फोकस ग्रुप क्रिएट करके उनसे जो है ना आइडियाज लिए जा सकते हैं ना. उसमें क्या मालूम करेंगे ये कि स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या क्या फीचर्स चाह रहा है बैकपैक में, उसको कहाँ पे पॉकेट्स चाहिए, किस टाइप का उसको चाहिए, किस तरह का उसका वेटेज हो, हैंडलिंग उसकी ईजी हो. सो द मार्केटिंग डिपार्टमेंट वुड बी गेटिंग ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन. Now, let's say that students have identified 5 desirable features. अब अगर हम कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने 5 फीचर्स को आइडेंटिफाई कर दिया. फर्स्ट,
द बैकपैक शुड बी ड्यूरेबल। पहली चीज कि स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है कि वो ड्यूरेबल होना चाहिए, दैट मीन्स कि लॉन्ग लास्टिंग, चलने वाला होना चाहिए, जल्दी ब्रेक नहीं हो जाए, लाइट वेट हो। मेन चीज, अगर बैकपैक ही हैवी होगा तो मजीद जब उसमें बुक्स एंड लैपटॉप्स एंड चीजें जाएंगी तो उसका वेट और बढ़ेगा। सो बैकपैक का लाइट होना बहुत जरूरी है, एंड रूमी, और उसमें जगह होनी चाहिए बहुत, एंड इट शुड लुक नाइस एंड नॉट कॉस्ट वेरी मच। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी इसमें, अगर हम ये मैन्युफैक्चर करने के लिए हमने मार्केट डिपार्टमेंट से देखा है तो उनके डिजायरेबल फीचर्स में ड्यूरेबिलिटी आ गई, लाइट वेट आ गया, रूमी हो गया, इट शुड लुक नाइस एंड इट शुडंट कॉस्ट मच, और उसका एक्सपेंस भी इतना नहीं आना चाहिए। नाउ द इम्पोर्टेंस customers attached to each of these requirements is also determined and shown in the figure. So अगर हम ये देखेंगे कस्टमर की इम्पोर्टेंस क्या क्या इन चीज़ों के लिए, किस तरह वो इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि हाँ उसमें यानी कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, देन वो हम डिटरमिन कर सकते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। नाउ दिस पार्ट ऑफ द फिगर लुक्स लाइक द चिमनी ऑफ द हाउस। सो ये वाला जो फिगर में जो पार्ट आएगा जिसमें इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा वो घर का चिमनी, दैट चिमनी इज यूजुअली समथिंग दैट इज फॉर लेटिंग स्मोक आउट। सो वो घर में एक चिमनी की शक्ल में जो है वो हमें उनकी रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब हम कर सकते हैं इन अ डायग्राम। नाउ यू कैन सी दैट ड्यूरेबिलिटी एंड रूमीनेस आर गिवन द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किन दो चीजों को दी जा रही है इसमें, एक तो ड्यूरेबिलिटी को और एक रूमीनेस, दैट मीन्स कि उसमें जगह ज्यादा होनी चाहिए और दूसरा ड्यूरेबल होना चाहिए। नाउ कॉम्पिटिटिव एवैल्यूएशन ऑन द फार, अगर हम कॉम्पिटिटिव एवैल्यूएशन को देखें तो ऑन द फार राइट ऑफ आवर रिलेशनशिप मैट्रिक्स इज एन एवैल्यूएशन। तो अगर हम ये चीज देखें तो एवैल्यूएशन ऑफ हाउ आवर प्रोडक्ट कंपेयर्स टू दोज ऑफ द कंपटीटर्स, ये देखना कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो कंपटीटर्स के प्रोडक्ट के साथ कैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। What are the features of our product that are much better than the competitor is offering, और या फिर हमारे राइवल्स जो है वो बेटर क्वालिटी दे रहे हैं या बेटर प्रोडक्ट दे रहे हैं और हमारा उसके साथ कैसे कंपेयर होता है प्रोडक्ट। So in this example there are two competitors. Let's say हम example एक create करते A and B. Now the evaluation scale is from 1 to 5. Evaluation scale जो होगा 1 to 5 हो गया। The higher the rating the better. So जहाँ पे जितनी ज्यादा हाई रेटिंग होगी 1 to 5 के स्केल के ऊपर उतना मतलब के वो बेहतर है। Now the important thing here is to identify which customer requirements we should pursue and how we fare relative to our competitors. So important thing कहाँ पे आ गई यहाँ पे, to identify which customer requirements we should pursue. हमने कौन से customer requirements को pursue करना है, किन चीज़ों को, every single thing, every customer's demand would be different. हर customer की demand different है, हर एक की requirements में भी different होंगी। आपने जो जज करना है वो ये करना है कि कौन सी चीज उसमें इंपॉर्टेंट होगी आपके प्रोडक्ट के लिए। नाउ हाउ वी फेयर रिलेटिव टू आवर कॉम्पिटिटर्स, और हम अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में कहाँ से बेहतर उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। नाउ फॉर एग्जांपल you can see that our product excels in durability relatively to the competitors, so yet it does not look as nice. दो चीजें आ गई। अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हमारा जो प्रोडक्ट है मे बी ड्यूरेबिलिटी में हमारे जो राइवल्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनके प्रोडक्ट, उन्होंने भी एक बैकपैक लॉन्च किया, एक हमने लॉन्च किया। सो लेट्स से कि हमारा जो बैकपैक है वो हमारे कॉम्पिटिटर्स के बैकपैक से ज्यादा ड्यूरेबल है, ज्यादा देर पा है चलने वाला है, लेकिन उसकी लुक इतनी अच्छी नहीं है जितनी कॉम्पिटिटर्स वालों की है। Now, this means that in designing our product, we could gain a competitive advantage by focusing our design efforts on the more appealing product. So, इस जगह पे हम कहाँ देख सकते हैं कि हम अपने डिजाइनिंग हम जब कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो हम कहाँ से एडवांटेज गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें कि हमारे पास ऑलरेडी ड्यूरेबिलिटी में तो हम उनसे आगे हैं, ठीक है, हमारा प्रोडक्ट इज बेटर देन। सो एडवांटेज हमने कहाँ से करना है कि हम फोकस कर लें थोड़ा सा अपना डिजाइन के ऊपर, डिजाइन के एफर्ट्स के ऊपर करें और उसको जरा थोड़ा सा अपीलिंग कर दें या उसकी लुक ज्यादा बेहतर कर दें, तो हम मजीद उनसे एडवांटेज गेन कर सकते हैं।
So आगे जब हम चलते जाते हैं, we speak about product characteristics. Now, product characteristics, specific product characteristics are on top of the relationship matrix. So, specific characteristics जो होंगे product के, वो matrix के top पे होंगे. Now, these are technical measures. ये technical measures होंगे, जो technical चीजें उसमें add होंगी, like the product design or such and such. Or in our example, these include the number of zippers and compartments, the weight of the backpack, strength of the backpack, and grade of the dye color, and the cost of materials. So, हमारे टेक्निकल मेजर्स इसमें कहाँ पे आ जाते हैं? अगर हम ये देखते हैं कि वो टॉप ऑफ द लिस्ट पे अगर हम उनका रिलेशनशिप स्टडी करना चाहें, तो हमारे टेक्निकल चीज़ें उसमें जो है वो नंबर ऑफ जिपर्स कितनी यूज़ हुए हैं, उसमें कितने कंपार्टमेंट्स, कितने खाने बना दिए हैं बैकपैक के अंदर, फिर उसका वेट बैकपैक का लाइट वेट है या थोड़ा हैवी साइड पे है, स्ट्रेंथ ऑफ द बैकपैक, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ, ग्रेड ऑफ द डाई कलर, जो कलर उसका दिया उसका ग्रेड क्या है, एंड द कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, और मटेरियल्स की कॉस्ट क्या पड़ रही है. So when we talk about the relationship matrix, the strength of the relationship between the customer requirements and the product characteristics is shown in the relationship matrix. Further, we will be showing you that. So relationship matrix में strength of relationship between the customer, यानी customer की requirement के बीच में, and product की characteristics के बीच में क्या relationship बनता है, उनका strength क्या है. Now, for example, you can see that the number of zippers and compartments is negatively related to the weight of the backpack. So, अगर ये चीज़ देखेंगे हम, जितने zippers उस पे लगाएंगे या जितने compartments हम बनाएंगे, तो वो negative जा रहा है relation to weight of backpack, क्योंकि obviously the more items you provide in it, the heavier the backpack is going to be. Now, a negative relationship means that as we increase the desirability of one variable, we decrease the desirability of the other. तो इस नेगेटिव रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ कि जब हम एक चीज़ की डिजायरेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, कि उनकी रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स की केस में रूमीनेस हो, जगह ज़्यादा हो, कंपार्टमेंट ज़्यादा हो, ठीक है, और लुक भी उसकी अच्छी हो, तो फिर हम जब वो चीज़ बढ़ा रहे हैं तो वो एक वेरिएबल हो गया, तो हम जब उसको इम्प्रूव कर रहे हैं या उसको बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहाँ से डिक्रीज हो रहा है, उसके वेट पे डिक्रीज हो रहा है, तो हम दूसरी जगह को डिक्रीज कर रहे हैं, एक चीज़ को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक इंक्रीज कर रहे हैं, एक को डिक्रीज हो रहा है. नाउ to fulfill those requirements, we can't fulfill all the customer requirements and say that the compartments भी ज़्यादा हो, zippers भी ज़्यादा हो, उसकी look भी अच्छी हो, plus उसका weight भी lightweight हो. That's going to be a little impossible to achieve. So at that same time, roominess is positively related to the number of zippers and compartments as in appearance. So अगर वो negativity उसकी कहाँ से आ गई, weight पे, पॉजिटिव उसका एस्पेक्ट क्या होगा उसमें, कि उसमें जब जगह बनेगी तो वो जो रूमीनेस है उसकी बैकपैक की, वो नंबर ऑफ जिपर से रिलेट हम उसको करेंगे, कंपार्टमेंट से रिलेट करेंगे एज इन, और उसकी अपीयरेंस के हिसाब से, सो वो पॉजिटिव उसमें चला जाएगा. तो अ पॉजिटिव रिलेशन मीन्स that an increase in desirability of one variable is related to an increase in the desirability of another. So, अगर हम नेगेटिव रिलेशनशिप को स्टडी करें, तो नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या चीज आ जाती है, एक चीज इंक्रीज हो रही है, एक चीज की डिजायरेबिलिटी, तो एक की डिक्रीज हो रही है. पॉजिटिव रिलेशनशिप में यहां पे आपकी डिजायरेबिलिटी, जब एक चीज एक वेरिएबल की बढ़ रही है, तो दूसरे की भी साथ बढ़ रही है, यानी डिक्रीज होने के बजाय दोनों एक साथ, दे आर गोइंग टुगेदर. नाउ दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेटिंग द प्रोडक्ट डिजाइन. तो इस टाइप का इंफॉर्मेशन जब आप प्रोडक्ट डिजाइन करना शुरू करते हैं, तो उसके लिए बहुत मेजर इंपॉर्टेंस रखता है. नाउ द ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स, when we speak of the trade-off matrix, now the trade-off matrix, you can see how the relationship matrix is beginning. So we can say how it's beginning to look like a house. So अगर आप concept imagine करो ना कि एक घर की शक्ल दे रहे हैं, ठीक है, आपने एक, जिस तरह हम लोग when we were children we would draw let's say a figure of a house. We would have the roof and then the building, and then we would put a chimney on it. So the chimney was one thing, then the top of the
thing would be the main characteristics. So trade off matrix में अगर आप ये देखो कि आप रिलेशनशिप अगर जज करना चाह रहे हो कि वो फिर एक घर की तरह उसकी लुक आने शुरू हो जाती है. Now the next step in our building process is to put the roof on the house. Second चीज हमारा क्या आ गया कि हम उस पे रूफ बिल्ड करते हैं. Now how is that? ये एक मिसाल के तौर पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया. Now this is done through a trade off matrix which shows how each product characteristics is related to the others. So मेन चीज ये ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. ठीक है, उसके थ्रू हम इसको जज करेंगे. तो हम उसमें ये चीज देखते हैं ट्रेड ऑफ मैट्रिक्स में कि आपका इट शोज हाउ ईच प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैसा प्रोडक्ट का एक एक कैरेक्टरिस्टिक जो है या एक एक उसकी खूबी जो है वो दूसरों के साथ रिलेट कर रही है. एंड दस अलाउज अस टू सी व्हाट ट्रेड ऑफ्स वी नीड टू मेक. और ये भी देखना है कि फिर हमें क्या ट्रेड ऑफ्स करने हैं, क्या चेंजेस करनी है. नाउ फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ जिपर्स इज नेगेटिवली रिलेटेड टू द वेट ऑफ बैकपैक. पहली चीज फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हमने पहले भी बात की कि अगर हम नंबर ऑफ जिपर्स उसकी लुक के लिए या उसके कंपार्टमेंट ज्यादा बढ़ाने के लिए हम नंबर ऑफ जिपर्स बढ़ा देते हैं तो उसका बैकपैक का वेट भी बढ़ जाता है. सो उस चीज में हमें फिर देन वी हैव टू सेट टारगेट्स. ठीक है, so setting targets, the last step in constructing the house of quality is to evaluate competitors products relative to the specific product characteristics and to set targets for our own product. So हम सबसे इस हाउस को कंप्लीट करते हुए हमने क्या चीज देखनी होती है कि हमने टारगेट्स सेट करने हैं अपने, कि लास्ट स्टेप ये होगा कि उस हाउस ऑफ क्वालिटी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि हमने एवेल्युएट करना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, their products relative to the specific product characteristics, यानी खास तौर पे product characteristics पे टारगेट करते हुए, and to set targets of our own production. So हम अपनी प्रोडक्ट में उनके मुताबिक अपना चेंजेस लाके अपने प्रोडक्शन में टारगेट सेट कर देते हैं कि this is the way we are going to produce our product. Now the bottom row of the house is the output of quality function deployment. End of the घर का end जो आ गया, ठीक है, उसमें वो आ गया आउटपुट ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. उसका आउटपुट क्या है? नाउ दीज आर स्पेसिफिक मेजरेबल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट हैव बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जनरल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो इसमें स्पेसिफिक क्या चीज आ गई कि आउटपुट ऑफ क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट क्या होगा हमारा उसका, जिसमें वो मेजरेबल प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, और दे हैव बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम जनरल कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. तो वो कहाँ से बने? जनरल कस्टमर्स की जनरल रिक्वायरमेंट से बनना है, जो उनकी डिमांड है, जो हमने फीडबैक ली है कस्टमर से. अकॉर्डिंग टू दैट देन वी वुड से दैट वी फॉर्मुलेटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर एंड हमने अपने प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये चीजें ऐड कर दी. सो द हाउस ऑफ क्वालिटी हैज बीन फाउंड टू बी वेरी यूजफुल. सो हाउस ऑफ क्वालिटी हम कहेंगे बहुत यूजफुल है. ठीक है, यू कैन सी हाउ इट ट्रांसलेट्स एवरीडे टर्म्स लाइक लाइट वेट, roominess and nice looking into specific product characteristics that can be used in manufacturing the product. So everyday अगर हम ये देखें कि house of quality जो है इसलिए हमें फायदेमंद देता है जब हम प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं कि हम उसको जो एवरीडे टर्म्स हैं हमारे, ठीक है, कि लाइट वेट हो, रूमीनेस हो, उसमें इट शुड बी नाइस लुकिंग, ये टर्म्स जो हैं जो एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं कॉमन लैंग्वेज में, ठीक है, उसको हम चेंज करके उनको हम कैसे अप्लाई करते हैं अपने प्रोडक्ट डिजाइन में और स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी क्या बिल्ड करते हैं जिनमें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो, कि उसकी लाइट वेट भी हो, कंपार्टमेंट ज्यादा हो तो रूमीनेस हो एंड उसकी लुक भी अच्छी हो. और ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं. Now note also how the house of quality can help in the communication between marketing operations and design engineering. So main चीज आप क्या नोट करते हैं क्वालिटी का, कि it can help in the communication between marketing. आपका ये हाउस ऑफ क्वालिटी आपको ना सिर्फ यानी मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है बट मार्केटिंग में भी, एंड मार्केटिंग में ऑपरेशंस में और डिजाइन में, जब आप इंजीनियर करते हो डिजाइन उसका. सो
हम जब आगे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका डिजाइन देख रहे हैं, तो उसके में फिर हमने उसकी रिलायबिलिटी भी चेक करनी है. नाउ रिलायबिलिटी, it's an important dimension of product design is that the product functions as expected. तो reliability कहाँ से हमारी क्या आ जाती है कि कोई भी product design है, ठीक है, उसका important dimension ये है कि product ऐसे function करे जिस तरह की उससे एक्सपेक्टेशंस हैं. लेट्स से कि एक प्रोडक्ट हमने बैकपैक ही डिज़ाइन किया है, ठीक है, और हमारा ये हमारी उसका फैक्टर है कि वो 1 साल जो है तक उसकी ड्यूरेबिलिटी हो. सो हमारा प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो 1 साल तक उसको यानी ड्यूरेबल रहना चाहिए, यानी 1 साल तक वो ख़राब नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, कोई उसमें डैमेज नहीं हो. नाउ क्या रिलायबिलिटी ये चीज़ जज करेगी कि इज़ दैट प्रोडक्ट कमिंग टू दैट एक्सपेक्टेशंस, और क्या वो वाकई 1 साल तक ड्यूरेबल है. नाउ दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रोडक्ट, सर्विस और पार्ट will perform as intended for a specified period of time under normal conditions. So अगर normal conditions में हम देखें तो हम specify कर देते हैं कि एक product है या कोई service हम provide कर रहे हैं या कोई part बना रहे हैं. हमने specify किया let's say कि backpack की durability 1 year की है. So वो 1 year तक उसको चलना चाहिए. 1 year से पहले वो अगर उसको हम नॉर्मल कंडीशंस में यूज़ करें तो वो रफ यूज़ ना करें तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 year तक चलनी चाहिए. नाउ वी आर ऑल फेमिलियर विद प्रोडक्ट रिलायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट वारंटीज. सो हम सारे इस चीज़ से तो फेमिलियर है ना कि प्रोडक्ट रिलायबिलिटी क्या आएगी, वो प्रोडक्ट की वारंटी के हिसाब से, यानी जितना अरसे का वारंटी उसकी है, जैसे 6 months और 1 year, तो उसकी फिर रिलायबिलिटी हम देखते हैं कि इफ़ वी आर ऑल फेमिलियर विद द प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, और वो किस चीज़ से हम जज करेंगे, उसके प्रोडक्ट वारंटी से. सो लेट्स से 6 months to 1 year का हमने प्रोडक्ट वारंटी दे दी है, तो क्या वो प्रोडक्ट वाकई रिलायबल है कि वो अपना वारंटी का टाइम पीरियड पूरा कर लें. नाउ वी ऑल्सो नो दैट नो प्रोडक्ट इज गारंटीड विथ 100% सर्टेनिटी टू फंक्शन प्रॉपरली. दूसरी चीज़ हमें क्या चीज़ जज है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसकी 100% हम गारंटी दे सकें कि वो प्रॉपरली फंक्शन करेगा. नो ह्यूमन बीइंग कैन डू दैट. नोबडी कैन गिव 100% सर्टेनिटी और कंफर्मेशन कि वो प्रोडक्ट उसी तरह प्रॉपरली फंक्शन करेगा फॉर दैट टाइम पीरियड. इसलिए वारंटी सेट होती हैं, ठीक है. प्रोडक्ट की वारंटीज, लेट्स से आपने सेल फोन लिया है, ठीक है, अब वो सेल फोन जो है वो आपने किया कि 1 साल की वारंटी है उसकी. अब 1 साल की वारंटी तो है, 1 साल तक, यानी कंपनी ने ये आपको गारंटी दे दी कि ये 1 साल तक खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी ये आपका ड्यूरेबल होगा. दे आर गिविंग देयर रिलायबिलिटी ऑन देयर प्रोडक्ट. अब इन केस वारंटी उस पर सेट होगी 1 year की. इन केस इफ द प्रोडक्ट गोज बैड, लेट्स से फॉर एनी अननोन रीजन, आपका सेल फोन में कोई डैमेज हो जाता है सॉफ्टवेयर का या वट एवर, फॉर यानी विदाउट एनी कॉज, तो वो वारंटी जो है, वो कंपनी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड द वारंटी. दैट मीन्स दैट दे विल गिव यू द रिपेयर फॉर इट because they have given you you are relying on their reliability कि वो प्रोडक्ट उन्होंने कहा कि 1 साल तक खराब नहीं हो. अगर हो जाता है तो फिर then the company would act on that warranty and then repair it for free for you without charges, क्योंकि उन्होंने उसकी वारंटी उठाई थी कि 1 साल तक नहीं होना चाहिए था. Now we also know that no product is guaranteed 100%. तो 100% तो कोई भी चीज़ गारंटी नहीं हो सकती कि वो properly function करे. Now, however, companies know that a high reliability is an important part of customer-oriented quality and try to build this into their product design. So, companies को एक चीज़ तो ये पता है कि high reliability जो है वो important part है customer-oriented quality में, और हाई रिलायबिलिटी वो उसको फिर ये कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन में ऐड कर दें ताकि वो कस्टमर क्वालिटी ओरिएंटेड क्वालिटी के ऊपर पूरा ये नहीं उतर सके या उनकी उस स्केल पे आ सके. सो व्हेन स्पीकिंग अबाउट रिलायबिलिटी,
रिलायबिलिटी इज अ प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड और अ चांस, यानी ये चांस है या मे बी it could happen. Now, for example, a product with a 90% reliability has a 90% chance of functioning as intended. So, एक product है, उसका let's say कि 90% reliability है. For example, we would say a product with 90% reliability has a 90% chance of functioning as intended. So, अगर वो 90% उसका reliability है तो 90% उसका फिर चांस होगा कि वो as intended, जिस तरह उसका सोचा गया है उस तरह वो एक्ट करेगा या उस तरह वो परफॉर्म करेगा. Now, another way to look at it is that the probability that the product will fail is 1.90, 10 or 10%. So, उसमें अगर हम 90% रिलायबिलिटी दे रहे हैं तो हमारा ये मकसद के 90% वो चांस होगा कि वो फंक्शन करेगा. उसमें कहाँ पे चीज़ आ जाएगी कि 10% हम लोग फिर एक गैप दे देते हैं कि मे बी एक प्रोबेबिलिटी है या एक गेस है कि 10% शायद प्रोडक्ट जो है ना चांसेस हैं कि फेल हो जाए. Now this also means that 1 out of 10 products will not function as expected. और इसका ये भी मतलब हुआ कि 10 प्रोडक्ट्स में से जो आपने प्रोड्यूस किया है उसमें से 10 लेट्स से पीसेस में से कोई एक का चांस है कि शायद वो जिस तरह एक्सपेक्टेड है उस तरह फंक्शन ना कर सके. Now the reliability of a product is a direct function of reliability of its component parts. So reliability प्रोडक्ट का जो है वो एक डायरेक्ट फंक्शन है, ठीक है, जो कंपोनेंट पार्ट्स की बेस के ऊपर है. Now if all the parts in a product must work for the product to function, so सारे पार्ट्स जो है ना प्रोडक्ट के अगर उनको हम कहते हैं कि मस्ट वर्क फॉर द प्रोडक्ट टू फंक्शन, सारे प्रोडक्ट को फंक्शन होने के लिए उसके सारे पार्ट्स का काम करना बहुत ज़रूरी है. देन द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज कंप्यूटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिलायबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स. तो एक प्रोडक्ट के फंक्शन होने में कि वो प्रॉपरली फंक्शन हो रहा है, ठीक है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके सारे पार्ट्स भी प्रॉपरली फंक्शन करें. तो फिर वो सारे पार्ट्स की हमें इंडिविजुअल रिलायबिलिटी शो करनी है, ठीक है, कि हर पार्ट रिलायबल होगा तो फिर वो पूरा प्रोडक्ट जो है वो रिलायबल तरीके से फंक्शन करेगा. उसके सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली कंपोनेंट्स जो हैं उनकी रिलायबिलिटी शो करनी होती है. सो देयर इज अ फिगर अहेड, यू कैन सी that RS is equal to R1, R2, R3 and Rn. Now where RS means reliability of the product or system. So RS का क्या मतलब हुआ कि reliability of the product or system, product या system की reliability. R1 क्या हुआ कि N is the reliability of components 1 through N. तो उसको हम जज करते हैं. Now, if we further speak about the process management, now according to TQM, Total Quality Management, a quality product comes from a quality process. Quality product आप कहाँ से maintain करते हो, कहाँ से लेके आते हो, एक quality process में से गुजर के. Now this means that quality should be built into the process. तो इसका मतलब क्या हुआ कि quality जो है वो उस process में built होनी चाहिए. It should be working within it so that when producing the product, we are maintaining the level of quality. Now, quality at the source is the belief that it is far better to uncover the source of quality problems and correct it than to discard defective items after production. So, quality का source क्या है और उसका source of belief क्या है? First is कि क्वालिटी प्रॉब्लम्स जो साथ साथ अगर आते जाते हैं तो उनको अनकवर किया जाए, उनको ढूंढा जाए और उनका सोर्स जान के उनको करेक्ट किया जाए. ना कि आप जो है वो एक आइटम आप जो है ना प्रोडक्शन में आपने दे दिया है, वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके आ गया और फिर हम उसके डिफेक्टिवनेस देख के उसको डिस्कार्ड कर दें.
So what we need to do that it should be a inbuilt process, यानी वो within ये होना चाहिए कि क्वालिटी चेक्स होने चाहिए कि ताकि उसी वक्त क्वालिटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, निस्बतन कि आप सारा मेहनत भी कर लें, कॉस्ट भी लगा दें और आपके पास डिफेक्टिव आइटम आए। तो साथ साथ आपको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए ये चीज़ जो है ना एक सिस्टम आपको क्रिएट करना पड़ता है। Now, if the source of the problem is not corrected, the problem will continue. तो अगर सोर्स जो है प्रॉब्लम का वो करेक्ट नहीं होता, ठीक है, प्रॉब्लम कंटिन्यू करता जाएगा। Now, for example, if you are baking cookies, let's say, you might find that some of the cookies are burnt. तो अगर आप एग्जाम्पल कर लेते हैं एक वेरी सिंपल चीज़, जो लेट्स से कि हम कुकीज़ बेक कर रहे हैं, तो बेकिंग के दौरान हम शायद ये जज कर लें कि हमारे कुछ कुकीज़ जो हैं वो जल गए हैं, बर्न हो गए हैं। So simply throwing away the burned cookies will not correct the problem. So प्रॉब्लम हमारा इस चीज़ से करेक्ट नहीं होगा उसमें कि हम सिर्फ वो जले हुए कुकीज़ को हम लोग बिस्किट्स को फेंक दें और फिर नए सिरे से बनाना शुरू कर दें। ये प्रॉब्लम का हल तो नहीं है। So you will continue to have burned cookies and will lose money when you throw them away. So आपका कंटिन्यूएशन जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं, लेट्स से कि आपका टेम्परेचर या हीटिंग उस अवन की या पैन की मेंटेन नहीं हो रही और अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, तो आपके तो कंटिन्यूसली कुकीज बर्न हो रहे हैं बेक करते हुए, और आप जब उन्हें फेंक रहे हो तो यू आर लूजिंग मनी देयर बिकॉज आपने प्रोडक्ट लगा दिया, टाइम लगा दिया, एवरीथिंग, एंड दैट्स अ लॉस ऑफ मनी. So it would be far more effective to see where the problem is and correct it. So उससे ज़्यादा effective क्या चीज़ होगी निस्बतन कि हम उसको डिस्कार्ड कर दें और नए सिरे से दोबारा स्टार्ट करें प्रोडक्ट को बनाने में या कुकीज़ को लेट्स से बेक करने में. So the most effective way would be कि हम उसका हल ढूंढें कि किस वजह से बर्न हो रही है, why are they burning, and then correct that problem. So in any production, in any product, that is the way we should work, that we should find the cause of what is affecting the items to have problems और उसको उसी वक्त उसी साथ साथ मेंटेन करके करेक्ट कर दिया जाए. लेट्स से फॉर एग्जांपल अब इसी में हमने बर्न कुकीज की बात की. द टेम्परेचर सेटिंग मे बी टू हाई, मे बी अवन की जो है टेम्परेचर सेटिंग ज्यादा हाई है इसलिए कुकीज बर्न हो रही हैं. द पैन मे बी कर्व्ड, मे बी पैन जो है वो कर्व्ड है, उस जगह पे ज्यादा वो कर्व आ रहा है, इस वजह से उसका वो है. Placing some cookies closer to the heating element, or the oven may not be distributing heat evenly. So, या फिर आपने ज्यादा कुकीज को हीटिंग एलिमेंट के करीब कर ज्यादा कर दिया, या फिर ये क्या है कि आपका अवन जो है वो इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा. सो दोज आर द सोर्सेज, लेट्स से कि वो हमारे सारे फॉल्ट्स इनमें से कोई हो सकता है. तो इंस्टेड ऑफ रीमेकिंग and then again burning and then going through the process again, what we would prefer to do is to correct the problem. That would save money in the long run whenever you're manufacturing a product, or for example even baking cookies. So process management. अब अगर हम ये चीज देखते हैं कि process management की नजर से, so quality at the source exemplifies the difference between the old and new concepts of quality. So हम उस चीज को देख रहे हैं कि पुराने क्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स क्या थे और नए के, और उनका हम डिफरेंस देखते हैं, जो जज करते हैं. नाउ द ओल्ड कॉन्सेप्ट फोकस्ड ऑन इंस्पेक्टिंग गुड्स आफ्टर दे वर प्रोड्यूस्ड और आफ्टर पर्टिकुलर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन. सो व्हाट वी वांट टू सी इज के ओल्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम उस वक्त फोकस क्या कर रहे थे, इंस्पेक्टिंग गुड्स को इंस्पेक्ट कर रहे थे उनकी प्रोडक्शन के बाद. जब वो प्रोड्यूस हो गए तो उनकी प्रोडक्शन के बाद हम उनको इंस्पेक्ट करके हम देख रहे हैं या कोई खास पर्टिकुलर स्टेज उनका प्रोडक्शन का गुजर जाता है, उसके बाद हम उनको जज करते हैं कि आर दे डू दे हैव एनी डिफेक्ट और नॉट इन इट. Now, if an inspection revealed defects, the defective products were either discarded or sent back for reworking. तो अगर हम देखें कि हम उस टाइम पे उनको इंस्पेक्ट करते हैं ओल्ड कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक, तो वो ये चीज रिवील कर रही है कि उसके डिफेक्ट्स जो थे वो बाद में हमें रिवील हो रहे हैं. दैट मीन्स लाइक ऑलरेडी वीव स्पेंट द मनी, वीव पुट द एक्सपेंस ऑन इट एंड वी हैव देन फाउंड आउट दैट देयर आर डिफेक्ट्स इन इट. सो द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स वर ईदर डिस्कार्डेड, उनको या तो हमने डिस्कार्ड कर दिया या उनको हमने रीवर्क करने के लिए वापस भेज दिया.
Now all this cost the company money, and these costs were passed on to the customer. So ये चीजें जो है अगर हम देखें तो कंपनी का मनी वेस्ट हुआ, ठीक है, और ये जो कॉस्ट है वो हम कस्टमर को आगे पास ऑन कर देते हैं. नाउ द न्यू कॉन्सेप्ट, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट हुआ कि एक चीज को प्रोडक्ट में ले आए, उसको बाद उसको इंस्पेक्ट किया. अब न्यू जो कॉन्सेप्ट है क्वालिटी का, मैनेजमेंट का या क्वालिटी फोकस करने का, so the new concept of quality focuses on identify quality problems at the source and correcting them. नए कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन क्वालिटी के प्रॉब्लम्स जज करते हैं, ठीक है. अगर हमें लगता है कि यस देयर इज सम डिफेक्ट और देयर इज सम प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन और इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो फिर हम उसका सोर्स जज करेंगे कि उसका सोर्स, और वो हमने जज किया था, आपको मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में कि वो वी वुड जज इट थ्रू द डिफरेंट टूल्स ऑफ क्वालिटी. हम उसका सोर्स जज करेंगे और फिर हम उसको उस वक्त करेक्ट कर देंगे. दिस वुड बी द न्यू वे टू करेक्ट इट व्हाइल गोइंग, अंटिल वेटिंग फॉर, बचाए कि हम उसका वेट करें कि पूरा प्रोडक्ट बन जाए और फिर उसका हम डिफेक्ट हमें पता लगे. सो when we speak about managing supplier quality, अब TQM extends the concept of quality to a company supplier. So ना कि सिर्फ प्रोडक्शन तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट काम कर रही है, बट ये कॉन्सेप्ट जो है क्वालिटी का मेंटेन करने का, ये इवन कंपनी के सप्लायर्स तक जाता है. Now traditionally companies tended to have numerous suppliers that engaged in competitive price bidding. So traditionally क्या चीज एक चीज होती थी कि एक बिड रखी जाती थी, ठीक है, न्यूमरस सप्लायर्स के बीच में, एंड दे वुड एंगेज इन द कॉम्पिटिटिव प्राइस, और वो बिड करते थे कॉम्पिटिटिव प्राइस में कि किसका कॉस्ट इफेक्टिव होगा. नाउ व्हेन मटेरियल्स अराइव्ड एन इंस्पेक्शन वाज परफॉर्म्ड टू चेक देयर क्वालिटी. तो जब मटेरियल्स आ जाते हैं तो उनको इंस्पेक्शन एक हमने क्रिएट की कि जो है ना उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए. ना TQM views this practice as contributing to poor quality and wasted time and cost. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम ये देखा जाए तो ये जो प्रैक्टिस है कि हम पहले हमने सप्लायर्स को जो है बिडिंग में उनको दे दिया, उन्होंने प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस में बिड किया, दे वन द बिड, देन हमने उनका प्रोडक्ट मंगवाए, उनके मटेरियल्स मंगवाए और फिर उसको इंस्पेक्ट किया क्वालिटी के लिए. So according to TQM, ये प्रैक्टिस जो है it is contributing to poor quality. क्यों? क्योंकि it's wasting time भी वेस्ट कर रहा है and cost भी वेस्ट कर रहा है. Now the philosophy of TQM extends the concept of quality to suppliers and ensures that they engage in the same quality practices. So TQM का philosophy क्या है total quality management की, कि वो extend कर रहा है यही concept quality का suppliers को भी, और वो ये इंश्योर करना चाहता है कि जो सप्लायर्स हैं वो भी इस की क्वालिटी प्रैक्टिसेस में एंगेज हो, उनका भी वो मेंटेन हो सिस्टम, ताकि बाद में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो. नाउ मैनेजिंग सप्लायर क्वालिटी, अगेन इफ वी स्पीक अबाउट इट, सो इफ सप्लायर्स मीट प्रेजेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, मटेरियल्स डू नॉट हैव टू बी इंस्पेक्टेड अपॉन अराइवल. तो ऑलरेडी अगर सप्लायर्स के बीच में भी अगर ऑलरेडी ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक सिस्टम, एक प्रैक्टिस चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो उनका जब वो एक क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक उन्होंने प्रीसेट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमने रख दिए कि ये मटेरियल का ये होने चाहिए, तो फिर उस वक्त जब वो अराइव होता है तो हमें उसको इंस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एंड दैट सेव्स टाइम. So today many companies have a representative residing at their supplier's location, thereby involving the supplier in every stage from product design to final production. So usually आजकल companies किस तरह function कर रही हैं, वो function कर रही हैं कि वो companies जो है they would have a representative उनका होगा जो सप्लायर लोकेशन पे रहेगा, और वो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट द मटेरियल वो उसके ऊपर क्वालिटी चेक रखेगा, एंड वो हर स्टेज पे प्रोडक्ट डिजाइन से लेके फाइनल प्रोडक्शन तक उस पर नजर रखेगा कि इसकी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, ताकि जब वो अराइव हो प्रोडक्ट आगे तो उसको
दोबारा से रीचेक ना करना पड़े, ऑलरेडी से हमें पता हो कि प्रीसेट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन्ड है उसकी क्वालिटी। नाउ टुडेज कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी called total quality management (TQM) focuses on building quality into the process as opposed to simply inspecting for poor quality after production. So main चीज again and again we've been repeating this thing कि concept of quality, total quality management का क्या concept है कि वो focus कर रहा है ये चीज build करने के लिए कि quality जो है वो during the process maintain की जाए, एंड निस्बतन के बजाय हम उसको एंड पे देखें कि पुअर क्वालिटी आफ्टर प्रोडक्शन हम जज करना शुरू करें, तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वो उसमें इनबिल्ट वो एक प्रोसेस फंक्शन हो जाए। सो TQM इज कस्टमर ड्रिवन एंड इनकम्पसेस द एंटायर कंपनी। सो TQM क्या है, वो कस्टमर ड्रिवन भी है और वो इनकम्पस कर रहा है एंटायर कंपनी को। बिफोर यू गो ऑन, नाउ यू शुड नो द 4 कैटेगरीज ऑफ क्वालिटी कॉस्ट। सो मजीद आगे जाने से पहले आपको यानी 4 कैटेगरीज को जज करना है जो क्वालिटी कॉस्ट को मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, नंबर 1, दीज आर प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट। ठीक है, पहली चीज प्रिवेंशन एंड अप्रेजल कॉस्ट आ गए, विच आर द कॉस्ट दैट आर इंक्योर्ड टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी। जो कॉस्ट को जो है ना हम देख रहे हैं कि इट शुड इंक्योर के उसमें पुअर क्वालिटी ना हो, प्रिवेंट करने के लिए उसको। देन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इंटरनल कॉस्ट हम देखते हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट हम देखते हैं, विच आर कॉस्ट दैट द कंपनी होप्स टू प्रिवेंट, और वो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम देखते हैं कि वो कॉस्ट आते कि ताकि क्वालिटी उनकी जो है वो पुअर ना हो। Now you should understand the evolution of TQM and the notable individuals who have shaped our knowledge of quality. So सबसे मेन चीज क्या अंडरस्टैंड आपने करनी है कि एवोल्यूशन आपने देखना है TQM का, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का, कि उसके नोटेबल इंडिविजुअल्स जो है हु हैव शेप्ड आवर नॉलेज ऑफ क्वालिटी। कौन है वो लोग जिन्होंने हमारा ये शेप किया क्वालिटी का नॉलेज, who have given us a base of judging it. Now, last you should know the 7 concepts of TQM philosophy. So, पहली चीज आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि आपने ये देखना है कि वो इंडिविजुअल नोटेबल इंडिविजुअल्स कौन है जिन्होंने नॉलेज ऑफ क्वालिटी को मेंटेन किया, ये शेप किया। उसके बाद आपने देखना है कि 7 कॉन्सेप्ट्स जो है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के फिलॉसफी के क्या है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कस्टमर फोकस, कस्टमर फोकस होना चाहिए। सेकंड क्या है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो कस्टमर फोकस हो गया कि कस्टमर की नीड्स की बेस पे फोकस हो गया, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हो गया कि मुसलसल इंप्रूवमेंट आती जाए। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट, एम्प्लॉइज के पास पावर होना चाहिए ताकि वो क्वालिटी मेंटेन अपने पॉइंट पे जज कर सके। यूज ऑफ क्वालिटी टूल्स होना चाहिए, क्वालिटी टूल्स इस्तेमाल होने चाहिए। प्रोडक्ट डिजाइन होना चाहिए, प्रोसेस मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोसेस का पूरा मैनेजमेंट हो, एंड मैनेजिंग सप्लायर क्वालिटी, और सप्लायर क्वालिटी को मैनेज किस तरह किया जाए। सो दीज वुड बी द 7 concepts of the TQM philosophy. So next what we would move on and study would be the quality awards and standards. अब क्वालिटी मेंटेन करने के लिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में डिफरेंट अवार्ड्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं। तो अगर हम उनको स्टडी करते हैं अब, तो हम पहला वाला देखेंगे तो दैट वुड बी द मैल्कम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, द MBNQA, मैल्कम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड। Now the Malcolm Baldrige National Quality Award was established in 1987. ये 1987 में बना when Congress passed the Malcolm Baldrige National Quality Improvement Act. ये उस टाइम पे 1987 में बना जब कांग्रेस ने असेंबली ने, यानी आपकी गवर्नमेंट, उस वक्त US गवर्नमेंट ने ये मैल्कम बेल्ड्रिज नेशनल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एक्ट को पास किया। Now the award is named after the former Secretary of Commerce, Malcolm Baldrige. So ये award उन्होंने किसके नाम पे बनाया, जो पहले Secretary of Commerce थे। And it is intended to reward and stimulate quality initiatives. और ये किस चीज़ के लिए दिया जाता है, ये reward जो है इस चीज़ के लिए ताकि quality initiatives को stimulate किया जा सके। Now, it is designed to recognize companies that establish and demonstrate high quality standards. ये award उन companies को दिया जाता है
जो ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जिनकी हाई मेंटेन हो, ठीक है, जो हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें, उन कंपनीज को ये अवार्ड्स दिए जाते हैं. एंड इट इज़ टू मोटिवेट द डिफरेंट कंपनीज टू act in such a way that they could get better awards. Now, the award is given to no more than 2 companies in each of 3 categories. So, ये award जो है no more than 2 companies को हम 3 categories हमने जज कर दी, उसमें 2 कंपनी से ज्यादा ये किसी को नहीं दिया जाता. 3 categories कौन सी हैं जिन पे वो जज होते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग आ गया, सो एक कंपनी को 2 कंपनीज हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मिल गया, सर्विसेज के ऊपर मिल गया, एंड स्मॉल बिजनेस. सो 3 कैटेगरीज में उसको हमने डिवाइड कर दिया. नाउ द पास्ट विनर्स इंक्लूड मोटरोला कॉर्पोरेशन, Xerox, FedEx, 3M, IBM एंड रिट्स कार्लटन. तो पास्ट विनर्स अगर हम इनका इस अवार्ड का देखें तो पास्ट में मोटरोला कॉर्पोरेशन ने इसका अवार्ड जीता, Xerox ने इसका अवार्ड जीता, FedEx ने, 3M ने, IBM ने और रिट्स कार्लटन जो एक होटल चेन है, उन्होंने ये अवार्ड जीते. Now, to compete for the Baldrige Award, companies must submit a lengthy application, which is followed by an initial screening. So, इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चीज़ उनको ज़रूरी है? इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए मेनली कंपनीज को एक बहुत लेंथी एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, ठीक है, जो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है, उनको जज करने के लिए कि उसमें उनकी क्वालिटी कैसे मेंटेन हो रही है कंपनीज की और वो हाई स्टैंडर्ड्स पे कैसे आ रहे हैं. सो कंपनीज दैट पास द स्क्रीनिंग मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. तो जो भी ये इनिशियल स्क्रीनिंग को पास कर जाता है वो नेक्स्ट स्टेप अवार्ड विनिंग में नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस में आ जाता है. So in which they undergo a rigorous evaluation process conducted by certified Baldrige examiners. So जब फर्स्ट इनिशियल स्क्रीनिंग में से वो गुजर जाते हैं उस एप्लीकेशन फॉर्म के, फिर उनको एक बहुत हार्ड और टफ जो है एवेल्युएशन प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है, जो Baldrige एग्जामिनर्स उन्होंने सर्टिफाइड रखे हुए उन के थ्रू कंडक्ट होता है. Now the examiners conduct site visits and examine numerous company documents. So वो examiners का क्या ड्यूटी होती है? They would conduct site visits, यानी sites के ऊपर विजिट करेंगे, प्लस वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को जो है ना जज करते हैं और चेक करते हैं. Now they base their evaluation on 7 categories. They look at each category in more detail. अब वो अपने बेस कैसे बनाते हैं एवेल्युएट करने के लिए कि ये कंपनी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है और इसका जो है इसको ये अवार्ड मिलना चाहिए, वो 7 कैटेगरीज के ऊपर उसको डिवाइड कर देते हैं और हर कैटेगरी को डिटेल से देखते हैं ताकि उसमें मजीद उनको जज हो सके कि इज दिस कंपनी रियली वर्दी ऑफ दैट अवार्ड. पहला कैटेगरी क्या आ गया उन 7 कैटेगरीज में से? दैट वुड बी द फर्स्ट कैटेगरी इज leadership. Now, examiners consider commitment by top management, their effort to create an organizational climate devoted to quality, and their active involvement in promoting quality. So, first category क्या आ गई? Leadership. So, examiners क्या जज करेंगे? उनकी कमिटमेंट देखेंगे टॉप मैनेजमेंट की, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की. लीडरशिप तो वो इसी तरह जज कर सकते हैं. एंड उनका एफर्ट क्या है कि वो ऐसा क्लाइमेट जो है क्रिएट करें ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी मेंटेन कर सके या क्वालिटी के लिए डिवोटेड हो. एंड देयर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन प्रमोटिंग क्वालिटी, और उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कितनी हद तक की है टॉप मैनेजमेंट की क्वालिटी प्रमोट करने के लिए. द सेकेंड पॉइंट वुड बी, नाउ फर्स्ट बी लीडरशिप इन दैट व्हेन दे आर जजिंग दैट. नाउ व्हेन दे आर जजिंग लीडरशिप एज द फर्स्ट पॉइंट, एक तो वो उनका active involvement देख रहे हैं लीडरशिप का. Secondly, they also consider the firm's orientation towards meeting customer needs and desires, as well as those of the community and society as a whole. तो दूसरी चीज वो क्या जज कर रहे हैं? फर्म्स की ओरिएंटेशन देख रहे हैं कि is it meeting customer needs and desires, और as well as those जो है जो community and society as a whole उनको भी needs उनके कवर कर रही है या नहीं. Now, the Malcolm Bridge National Award, Quality Award, would be judged on
these 7 categories. First is leadership. So उन्होंने इसका टोटल पॉइंट्स जैसे 1000 है इसमें. लीडरशिप के लिए उन्होंने 120 पॉइंट्स जो है अलॉट किए हुए. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए 85 पॉइंट्स. कस्टमर एंड मार्केट फोकस इज द नेक्स्ट, सो उसके लिए भी 85 पॉइंट्स. फिर इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस आ गया, उसके लिए 90 पॉइंट्स. ह्यूमन रिसोर्स फोकस 85 पॉइंट्स. प्रोसेस मैनेजमेंट 85 पॉइंट्स. और बिजनेस रिजल्ट्स जो हैं वो 450 पॉइंट्स. तो टोटल पॉइंट्स हमारे 1000 पॉइंट्स बन गए. सो पहली चार कैटेगरी 7 कैटेगरीज हैं ये इसमें, जिसमें पहली 4 में लीडरशिप आ गया, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई, ठीक है. कस्टमर एंड मार्केट फोकस, कस्टमर्स का और मार्केट का फोकस क्या है. इंफॉर्मेशन और उसको एनालाइज, उसके एनालिसिस, उसका एनालाइज कैसे किया जाए. फिर ह्यूमन रिसोर्स फोकस, देन प्रोसेस मैनेजमेंट एंड देन द बिजनेस रिजल्ट्स. इन 7 कैटेगरीज की बेस पे वो ये अवार्ड जज करते हैं. मैल्कम ब्रिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड, ना उसमें जो सेकंड कैटेगरी आ गई वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आ गई. अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है. द एग्जामिनर्स लुक फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्लान that has high quality goals and specific methods for implementation. So examiners क्या चीज जज कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान देख रहे हैं, हाई क्वालिटी गोल्स तक अचीव जिसमें हो रही हैं, एंड स्पेसिफिक मेथड्स उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको उस पे प्रोडक्शन पे इम्प्लीमेंटेशन उनकी. नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी, कस्टमर एंड मार्केट फोकस, addresses how the company collects market and customer information. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या आ गई कि हाई क्वालिटी गोल्स को और स्पेसिफिक मेथड्स जो है उनको इम्प्लाई करने के लिए. उससे अगली कैटेगरी आ गई कस्टमर एंड मार्केट फोकस. वो एड्रेस क्या कर रहा है, दैट्स एड्रेसिंग हाउ द कंपनी कलेक्ट्स मार्केट एंड कस्टमर इंफॉर्मेशन. मार्केट से और कस्टमर से वो इंफॉर्मेशन कैसे कंपनी कलेक्ट कर रही है. सक्सेसफुल कंपनीज शुड यूज अ वैरायटी ऑफ टूल्स टुवर्ड्स दिस एंड. सो सक्सेसफुल कंपनीज को जो है वो एक वैरायटी ऑफ टूल्स जो है एक्सेस करने चाहिए, यूज करने चाहिए इस जगह पे आने के लिए, इस पॉइंट पे. जब वो when there are such as जैसे मार्केट सर्वेज हो गए या फोकस ग्रुप्स, इनके ऊपर वो आजमाएं ताकि उनको ये एग्जैक्ट अपने कंपनी का सक्सेस मालूम हो सके किस वजह से. नाउ द कंपनी देन नीड्स टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इट एक्ट्स ऑन दिस इंफॉर्मेशन. और फिर कंपनी को उस चीज पे ये देखना है कि उसने डेमोन्स्ट्रेट इस तरह करना है कि वो इन इंफॉर्मेशन पे कैसे एक्ट करती है. उसने जो फोकस ग्रुप्स किए या मार्केट सर्वेस किए उसकी बेस पे वो कैसे एक्ट कर रहे हैं. सो द एग्जामिनर्स वुड बी जजिंग दैट बिफोर गिविंग दिस अवार्ड. नाउ द फोर्थ कैटेगरी इज इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस. फोर्थ आ गया इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस. Examiners evaluate how the company obtains data and how it acts on the information. So जज क्या कर रहे हैं एग्जामिनर्स, वो evaluate कर रहे हैं कि कंपनी ने डेटा कैसे मेंटेन किया है या obtain किस तरह किया है उसको, एंड उसने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्ट कैसे किया. Now the company needs to demonstrate how the information is shared with the company as well as the other parties such as the suppliers and customers. So कंपनी को ये प्रूव करने की जरूरत होती है उस जगह पे ये अवार्ड जीतने के लिए कि उन्होंने किस तरह उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने विद इन द कंपनी कैसे शेयर की, किस मीन्स के थ्रू उन्होंने शेयर की, फिर अपने दूसरी जो पार्टीज हैं जिसमें सप्लायर्स भी आ जाते हैं, कस्टमर्स भी आ जाते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंचाए. So the fifth and sixth categories deal with management of human resources and management of process respectively. So fifth और sixth categories क्या आ जाती हैं, वो डील करती हैं मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेसेस respectively. So these two categories together address the issues of people and process. So ये दो categories किस चीज को address कर रही हैं, people and process को. Human resource focus addresses issues of employee involvement. So human resource किस चीज को focus कर रहा है, it addresses the issues of employee involvement. Employee involvement कितनी है एक प्रोडक्ट में. This entails continuous improvement programs, employee training and functioning of teams. So इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई कि it entails कि उसमें continuous improvement programs हो, employee training हो and functioning of teams, और teams की functioning कैसे हो रही है.
फिर नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इज कंसिडर्ड अ क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ क्वालिटी। सो एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट जो है उसको हम क्रिटिकल एलिमेंट कंसिडर करते हैं क्वालिटी का। सो सिमिलरली द प्रोसेस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस। तो उसी तरीके से जो लास्ट है वो उसका प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो इन्वॉल्व करता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस पे। यूज ऑफ टूल्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट such as statistical process control and the degree of process integration within the organization. So process management में क्या क्या चीज़ें involve हो जाती है? एक तो documentation जो है processes की, फिर कौन सी tools यूज़ किए जा रहे हैं या use of tools जो quality improve करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, उसमें जैसे for example ऐसे statistical process control आ गया, और उसके बाद ये जज करना कि उनका डिग्री ऑफ प्रोसेस इंटीग्रेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दीज वुड बी द 7 categories that they would judge, the examiners would judge, and then they would think that yes, the company is of that value that they should be awarded the Malcolm Baldrige National Quality Award. दिस इज जस्ट वन पार्ट स्टूडेंट्स। ये इस तरह के बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स और सर्टिफिकेशंस होते हैं जो एक कंपनी का ये मैनेजमेंट जज करने के लिए कि उसके यानी क्वालिटी मेंटेन हो रही है, उसकी क्वालिटी की जजमेंट के लिए कि यस दैट पार्ट company is playing its role or its part in it in producing or following the standards of total quality management. So further in the next lecture we will be studying about the other different awards and certifications. Thank you so much.